Okay, so let me talk about this फिजिक्स एंड कंप्यूटर. ठीक है, दो चीज़ों की हम यहाँ पे बात करेंगे, फिजिक्स एंड कंप्यूटर, दैट वाई कंप्यूटर्स आर इम्पोर्टेंट इन फिजिक्स. इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन. तो जो कंप्यूटिंग मशीनरी थी, इसकी जो रिक्वायरमेंट थी, दैट इज लॉन्ग टाइम एगो, बहुत साल पहले लोगों को ऐसा जरूरत महसूस हुई. दे फील दैट दे रिक्वायर ए मशीन which can do calculation for them, right? Means a long time ago we require machines which can do calculation for us. Okay, and we call those as computational machines. So बड़ी इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए, अगर फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन की बात की जाए वो कौन सी थी. सो फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन इज known as abacus. ठीक है, and it is roughly 5,000 years back it was developed, right? और abacus का लोग यूज किस लिए करते थे? दे यूज इट टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये सारी चीजें जो थी, सारी जो कैलकुलेशन थी, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ abacus. एंड देन in the early 19th century, Charles Babbage he proposed a computing machine means he proposed that there should be a computing machine which can do calculation for us, right? And who is Charles Babbage? He's British. Yeah, he's the father of computer. So it is British mathematician and astronomer, and is also known as father of computers, right? We call it as computing machine or analytical engine. But due to lack of technology, we are not able to build such a machine. Then in late 19th century, Leonard Torres I. Quivito, he used electromechanical technology to build a computing machine. Let me write down the name of the engineer. Is a Spanish engineer. What he did, his name is Leonard Torres I. Quevedo, Quevedo, right? In the late 19th century, what he did, he used electromechanical technology right, and to build a computing machine. Means the thing which is proposed in the beginning of
19th century by Babbage. It was designed by this Spanish engineer. So it will take a lot of time in the beginning, right? Then in 20th century, people designed analog computers, and based on vacuum tube technology, right? And then in the mid of 21st century, in the mid of 21st century, uh, with the development of this what we call semiconducting devices, right? Or semiconductor technology or semiconducting devices, people switch over towards the digital computers. So that means from 1800 onwards till now, people have seen a lot of changes in the technology of computers. शुरू में जो कंप्यूटर था दैट इज लाइक ए बिग हॉल, बड़े से हॉल में वो वैक्यूम ट्यूब्स थी, ठीक है, डायोड्स और टायोड्स दोज आर यूज्ड, सो इट्स अ वेरी बल्की इन साइज, बहुत बड़ी मशीन थी। और जैसे ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मींस डायोड्स के बारे में लोगों को पता चला, दे थिंक अबाउट ट्रांजिस्टर एंड सो and then people start thinking in terms of miniaturization of devices, then a new era has been started. और वो कब स्टार्ट हुई? It started with the lecture of Richard Feynman, and what is the title of the talk? The title of the talk is there is plenty of room at the bottom. Then a new era of miniaturization of devices has been emerged out with the lecture given by Richard Feynman in 1959, and the title of the talk is There is Plenty of Room at the Bottom. इंटरनेट पे ये अवेलेबल है लेक्चर, इफ यू सर्च इट ऑन गूगल, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। 3-4 पेजेस का ये लेक्चर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुली रिटन। इसमें एक चैलेंज दिया गया बच्चों, सॉरी इट्स चैलेंजिंग, और चैलेंज दिया गया, एंड दैट चैलेंज इज एक्सेप्टेड। एंड व्हाट वाज द चैलेंज, एंड व्हाट इज सी द फेथ ऑफ ए फिजिसिस्ट इन फिजिक्स। And what he said, that whole of the encyclopedia can be written on the tip of a pen. पिन तो देखिए आप लोगों ने, उसके ऊपर पूरा के पूरा इंसाइक्लोपीडिया जो है हम लिख सकते हैं। सी द फेथ मीन्स अगर हम एक एक एटम को पकड़ के जोड़ना सीख लें, वी आर एबल टू पुट atoms one by one where it is needed, then things can be done in this manner. And
See the faith that no law of physics can stop me to do that. See the confidence in 1959, and the result of this lecture is the nanotechnology, and that nanotechnology is emerged around in 1990. 80 और 90s के बीच में नैनो टेक्नोलॉजी हैज बीन इमर्ज्ड आउट. ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थी नेचर में, लोग जाने अनजाने में इसको यूज भी कर रहे थे, बट दे डू नॉट नो दैट इट इज द नैनो टेक्नोलॉजी. इट इज बिकॉज ऑफ दिस. जाने अनजाने में बहुत सालों से लोग यूज कर रहे थे उस नैनो टेक्नोलॉजी को, ऐसा नहीं था कि तभी. बट नाउ पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नैनो टेक्नोलॉजी बिकॉज नाउ दे आर कंफर्टेबल विद द एटम्स. How atoms behave, how they will respond in the different environment, what is happening to those atoms. So a new era has been emerged out, right? And now you can see the computers in front of you, your laptops, your mobiles. They are miniaturized devices. अरबों खरबों के हिसाब से उसके अंदर ना, एक प्रोसेसर के ऊपर अरबों खरबों के हिसाब से अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं. कैन यू इमेजिन कि वो करोड़ों अरबों जो वो हैं, वो इतनी सी 1x1 सेंटीमीटर की कोई चिप है या 2x2 सेंटीमीटर की चिप है, उसमें हजारों करोड़ों अरबों वो ट्रांजिस्टर कैसे एम्बेडेड किए होंगे. कैन यू थिंक अबाउट दैट? हाउ ब्यूटीफुल इज दैट साइंस एंड हाउ पीपल डू दैट. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हमें तो एक टिप ऑफ पिन भी बड़ी छोटी सी लगती है. यहाँ लोग बोल रहे हैं पूरा इंसाइक्लोपीडिया लिखना है. ठीक है. सो इस तरह से चीजें जो थी वो डेवलप हुई. तो दैट मीन्स नाउ कंप्यूटर्स जो थे, उनका हार्डवेयर जो था वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था, एंड इट वाज एबल टू डू and these computers are able to do so many type of calculations. So that means a new branch has been developed, computational science. Computational science अपने आप में एक अलग ब्रांच आ रही है. आज अभी भी यूनिवर्सिटीज में कंप्यूटेशनल साइंस के नाम से अलग अलग ब्रांचेस खुल रही हैं. इवन कंप्यूटेशनल फिजिक्स भी अपने आप में एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो फील्ड है वो इमर्ज होके निकली है. ठीक है. एंड देन let me talk about the importance of computers in physics. And computers is a different way to do physics. It's a different way to do physics. How? Say experimentalist क्या करते हैं? पहले तो क्या था कि हमारे पास दो ही तरह के ब्रांचेस थी फिजिक्स में. बिकॉज मैं कंप्यूटेशनल साइंस की बात नहीं करूंगा बिकॉज इट्स ए क्लास ऑफ फिजिक्स. तो लेट मी टॉक अबाउट this what we call that computers, their role in physics or computational physics, right? So सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिसिस्ट की. कितनी तरह के फिजिसिस्ट होते हैं या फिजिक्स हमारे पास कितनी तरह की होती है. तो फिजिक्स इज ऑफ टू टाइप्स. one is the computational physics, sorry, it's a theoretical physics, and another is experimental physics. ये दो तरह की ब्रांचेस हमारे पास इमर्ज होके आती हैं. वन इज द थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड अनदर इज द एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स. एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट हम करते कब है? अपने आप तो किसी को पता नहीं चलेगा कि एक्सपेरिमेंट करो, ये करना है वो करना है. हम लोग जो लैब में करते हैं वो तो चलो कोर्स, इट्स ए पार्ट ऑफ कोर्स. किसी ने किया था, आपको बता दिया एंड यू शुड डू इन दैट मैनर. बट जिस आदमी ने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया होगा उसने कैसे किया होगा? और फिजिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट्स ए स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग इज नेचर, हम उसको देख रहे हैं.
उस पैटर्न को देख रहे हैं, फिर उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कोई एक्सपेरिमेंट सोचते हैं, फिर उसको डिजाइन करते हैं, फिर उसके लिए कई बार उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ही हमारे पास कोई इक्वेशन निकल के आती कि जी ये इक्वेशन हो सकती है जो सूट करती है। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट क्या करता है? थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट भी नेचर को देख रहा है, बड़े सारे फिनोमिना को देख रहा है, एंड देन उसके बेस पे कोई इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश कर रहा है। वो इक्वेशन ढूंढ रहा है और वहां एक्सपेरिमेंट को करने के बाद इक्वेशन ढूंढी जा रही है। वहां बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, बस सोच रहे हैं और सोचने के बेस पे वो इक्वेशन दी जा रही है। आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बट ही डिवाइज्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बट एट द सेम टाइम उसके पैरेलल वहां पे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ठीक है, वो ईथर की प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में था, और उसके नेगेटिव रिजल्ट जो थे उन्होंने प्रमोट किया लोगों को नई थ्योरी डेवलप करने के लिए। लॉरेंट्स ने भी थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन दी रिलेटिविटी की, आइंस्टाइन ने भी दी। तो सबका एक अपना अपना रोल है। कई बार क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटलिस्ट एक्सपेरिमेंट करके कोई रिजल्ट छोड़ देता है, एंड देन पीपल उसको, लोग जो है कोशिश करते हैं उसके लिए इक्वेशन ढूंढने की वो उस पर फिट बैठ सके। अगर वो फिट नहीं बैठ सकती, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द फिजिक्स, वी हैव टू इंप्रूव द फिजिक्स। यही तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ हुआ। वो एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे थे, ब्लैक बॉडी का एक पैटर्न लोगों को नजर आ रहा था, दैट इज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। इस तरह का कर्व आता था, इस तरह का कर्व आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ब्लैक बॉडी का, बट इक्वेशन कोई फिट बैठ नहीं रही थी। रिले जीन्स लॉ आया, वीन्स लॉ आया, कोई लॉ यहाँ पे सूट कर रहा था, कोई लॉ यहाँ पे जाके सूट कर रहा था। देयर इज ए प्रॉब्लम, बट यहाँ पे कुछ नहीं था। ये वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रीजन। देन प्लैंक थ्योरेटिकली डिराइव्ड द प्लैंक्स लॉ। तो ये दो अप्रोचेस थी फिजिक्स को पढ़ने की हमारे पास इनिशियली, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन। इसके बाद लोगों ने क्या किया, जब कंप्यूटर्स डेवलप हो गए तो कंप्यूटर पे लोगों ने चीजों को सिमुलेट किया। तो मान लो अब एक्सपेरिमेंट जब करना है तो बड़ा कॉस्टली अफेयर है उस एक्सपेरिमेंट को करना। मैं सन का टेम्परेचर नहीं अटेन कर सकता हूँ लैब में, इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। मुझे 0 केल्विन का टेम्परेचर मैं इन लैब्स में आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। 0 केल्विन के नियर बाई का जो टेम्परेचर है, ठीक है, मैं 5000 केल्विन का टेम्परेचर आपको यहाँ नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट व्हाट इज हैपनिंग टू द मटीरियल एट दैट टेम्परेचर, एट दैट प्रेशर, वो मैं कंप्यूटर पे सिमुलेट करके आपको जरूर दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो कॉस्टली एक्सपेरिमेंट करने से पहले लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पे चीजों को सिमुलेट कर लेते हैं पहले, एंड देन दे कोशिश करने कि अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट। दूसरी ओर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट इक्वेशंस जो थी वो डिराइव करते हैं, देन उन्हीं वो इक्वेशंस क्या बता रही हैं, उनका क्या मीनिंग है, उस चीज को समझने के लिए भी कंप्यूटेशन हमारी हेल्प करता है। सो दैट मीन्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स is like a bridge between theory and the experiment. So that means a new branch of physics has been emerged out, and we call that as computational physics. And this computational physics is a bridge between theory and experiment, right? So और बड़ी सारी फील्ड्स हैं, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, एक्सेलेरेटर फिजिक्स हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, ठीक है, प्लाज्मा मॉडलिंग हो गया। इन सारी जगहों पे कंप्यूटेशनल फिजिक्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड देन कल मैं बात करूंगा फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्रॉब्लम फॉर सोल्यूशन ऑन ए कंप्यूटर और द पैराडाइम फॉर सॉल्विंग फिजिक्स
प्रॉब्लम्स ऑन द कंप्यूटर, कि किस तरह से हम फॉर्मुलेट करते हैं प्रॉब्लम को सो दैट इट कैन बी डन ऑन ए कंप्यूटर, राइट।